Hello everyone, welcome to my channel all about biology and this is Jyoti Verma. Today we are going to discuss about the characteristics of family Apocynaceae. So, family Apocynaceae is known as Oleander family because it includes a plant named as Nerium, which is also called as oleander. It is also called as dogbane family because some taxa are used as dog poison. Now coming to the systematic position of family Apocynaceae. So it belongs to class Dicotyledons, subclass Gamopetalae, series Bicarpellate, order Gentianales, family Apocynaceae. Now coming to the distribution, so it is a large family containing of about 411 genera and about 4650 species, mostly distributed in tropical and subtropical regions. Some of them are distributed in temperate zones also. सो फैमिली एपोसाइनेसी की अगर हम बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ी फैमिली है जिसमें लगभग 411 जेनरा और 4650 स्पीशीज मौजूद हैं. अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो एपोसाइनेसी के मेंबर्स ज़्यादातर ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाए जाते हैं और कुछ प्लांट्स आपको टेम्परेट जोन में भी देखने को मिलेंगे. So now coming to the vegetative characters of the family. So first of all, the habit of the family. The plants are mostly large or medium sized tree like in Alstonia. They can be in the form of shrubs like in Thevisia and Nerium. They can be in the form of herbs like Catharanthus. They can be woody twiners in the case of Alamander, or they can be succulent in the case of Adenium. सो अगर हम फैमिली एपोसाइनेसी के हैबिट की बात करें तो जो प्लांट्स आपको देखने को मिलेंगे वो ज़्यादातर लार्ज टू मीडियम साइज ट्री के फॉर्म में देखने को मिलेंगे. अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल है एल्स्टोनिया. शर्ब्स की अगर हम बात करें तो शर्ब्स में आपको थेविशिया और नीरियम देखने को मिलेंगे जो कि एपोसाइनेसी के मेंबर हैं. इसके अलावा आपको हर्ब्स में कैथेरैंथस रोजियस बहुत कॉमनली देखने को मिल जाएगा. वुडी ट्विनर्स में आपको एलामेंडा और सैक्युलेंट प्लांट्स में आपको एडीनियम दिखाई देगा जो कि एपोसाइनेसी का मेंबर है. रूट सिस्टम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टैप रूट सिस्टम देखने को मिलेगा एपोसाइनेसी में. स्टेम हर्बेशियस और वुडी, इरेक्ट, ब्रांच्ड, सॉलिड, glabrous, green and milky latex is present. The most important characteristic feature of the family Apocynaceae is that the plants have a milky latex. So the stem of these plants show the presence of milky latex in them. सो अगर हम स्टेम की बात करें तो स्टेम हर्बेशियस हो सकती है, वुडी हो सकती है, इरेक्ट होगी, ब्रांच्ड होगी, सॉलिड, ग्लैबरस, ग्रीन, और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है फैमिली एपोसाइनेसी का वो ये है कि इनके मेंबर्स में आपको मिल्की लेटेक्स देखने को मिलेगा. आपको स्टेम में, लीफ में एक तरीके का मिल्की लेटेक्स देखने को मिलेगा जो कि एपोसाइनेसी के प्लांट्स की बहुत ही ज़्यादा खास बात है. नाउ कमिंग टू लीफ. सो लीफ इज़ बेसिकली सिंपल, petiolate, opposite, decussate or sometimes alternate or whorled, exstipulate or rarely stipulate in the case of Taberni montana, unicostate reticulate venation, and milky latex is also present in the leaves. So the leaves are petiolate. It means that they have a petiole. The arrangement of leaves may be opposite, decussate, or it may be alternate, or sometimes the leaves may be arranged in the form of a whorl. The stipules in this case are mostly exstipulate. It means that the stipules are absent. However, in the case of Taberni montana, the stipules are present. Leaf venation pattern is unicostate reticulate venation pattern. So in the case of unicostate reticulate venation, there is a single prominent midrib, that means unicostate, and reticulate venation means that the veinlets are irregularly distributed, forming a kind of network. So that is your unicostate reticulate venation, and milky latex is present in the leaf
ऑल्सो। सो अगर हम एपोसाइनेसी के मेंबर्स में लीफ की बात करें तो लीफ ज़्यादातर आपको सिंपल लीफ देखने को मिलेगी, पीटियोलेट होगी क्योंकि उसमें पीटियोल प्रेजेंट होगा। लीव्स का जो अरेंजमेंट है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देखने को मिल सकता है। लीव्स अपोजिट डेक्यूसेट फॉर्म में अरेंज हो सकती हैं, अल्टरनेट फॉर्म में अरेंज हो सकती हैं और एक वर्ल के फॉर्म में भी अरेंज हो सकती हैं। ज़्यादातर केसेस में स्टिप्यूल्स एब्सेंट है, इसलिए एक्स स्टिप्यूलेट कंडीशन है। रेयरली आपको टैबरने मोंटाना में स्टिप्यूल्स देखने को मिल सकते हैं। यूनिकोस्टेट रेटिकुलेट वेनेशन पैटर्न यहाँ पर होता है क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल प्रोमिनेंट मिडरिब आपको देखने को मिलेगी और रेटिकुलेट वेनेशन का मतलब होता है जो वेनलेट्स होती हैं वो इरेगुलरली डिस्ट्रीब्यूट होके एक तरीके का नेटवर्क बनाती हैं। और लीव्स में भी आपको मिल्की लेटेक्स दिखाई देगा, जब भी आप लीफ को ब्रेक करेंगे एक तरीके का मिल्की लेटेक्स वहाँ से निकलेगा। Now coming to the inflorescence. So inflorescence mostly is of cymose type, either terminal or axillary. Usually you will be able to see dicacial cyme within the members of the plants. Flowers are solitary or single in the case of Catharanthus roseus. So what happens in the case of dicacial cyme? In dicacial cyme you will be able to see a single central flower firstly, and on the either side of it there is lateral branching over which flowers will arise. So that is your dicacial cyme. However, in the case of Catharanthus roseus you will be able to see a solitary flowers, a single solitary flower is there in the case of Catharanthus. इन्फ्लोरेसेंस की अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको साइमोज इन्फ्लोरेसेंस देखने को मिलेगी जो कि बहुत कॉमन इन्फ्लोरेसेंस है। इसमें होता क्या है, मेन एक्सिस सबसे पहले टर्मिनेट होगी एक फ्लावर में और वहाँ पर लैटरल ब्रांचिंग होगी, लैटरल ब्रांचिंग से भी फ्लावर्स अराइज होते हैं। सो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं डाइकेशियल साइम, जो कि बहुत कॉमन है। हमने आपको थैविशिया पेरुवियाना वाले वीडियो में डाइकेशियल साइम दिखाया था थैविशिया के केस में, और कैथरैंथस के केस में आपको सिंगल फ्लावर, सॉलिटरी फ्लावर देखने को मिलेगा। So these are different types of cymose inflorescence, out of which the most common that you will be able to see is the dicacial cyme. So what happens in the case of dicacial cyme? The main axis terminates into a flower firstly, later on the main axis gets divided into the lateral branches. The lateral branches will also develop into a flower, and the lateral branches later on further divide into two. So that is how the dicacial cyme looks like, and it is most commonly seen in the members of family Apocynaceae. We have seen it in the case of Thawicea. If you have not seen it yet, you can see it from the video of Thawicea peruviana. And in the case of Catharanthus roseus, we are able to see a single solitary flower. सो अगर हम डाइकेशियल साइम की बात करें जो कि मोस्ट कॉमनली आपको एपोसाइनेसी में देखने को मिलेगी, थैविशिया पेरुवियाना वाले वीडियो में हमने आपको डाइकेशियल साइम दिखाया भी था थैविशिया में। सो डाइकेशियल साइम में होता क्या है, सबसे पहले जो मेन एक्सेस होती है वो टर्मिनेट होती है और उससे टिप पे एक फ्लावर अराइज होगा, और ये जो मेन एक्सिस है ये लैटरल ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है जिसपे भी फ्लावर्स का डेवलपमेंट होता है, और फिर से ये जो लैटरल ब्रांच होगी ये फिर से दो में डिवाइड हो जाएगी। इसलिए इस कंडीशन को हम लोग डाइकेशियल साइम के नाम से जानते हैं। ये आपको बहुत कॉमनली आपको थैविशिया में भी देखने को मिलेगी। थैविशिया वाले वीडियो में हमने डाइकेशियल साइम अच्छे से देखा था। इसके अलावा कैथरैंथस रोजियस के केस में आपको एक सिंगल सॉलिटरी फ्लावर देखने को मिलेगा। Now coming to the flower. So flower in the case of family Apocynaceae may be bracteate or ebracteate. Pedicellate, it means that it consists of a stalk which is called as the pedicel. Complete, it means that it consists of all the whorls including calyx, corolla, androecium and gynoecium. Hermaphrodite, it means that the both androecium and gynoecium are present within the same flower. Actinomorphic, it means that the flower can be divided into two equal halves along more than one median longitudinal plane. Hypogynous, it means that the ovary is superior. And tetra or pentamerous. So flower यहाँ पर ब्रैक्टिएट या फिर ईब्रैक्टिएट भी हो सकता है। पेडिसिलेट क्योंकि यहाँ पर पेडिसल प्रेजेंट है।
कंप्लीट, क्योंकि यहाँ पर सारे वर्ल्स प्रेजेंट होते हैं, कैलेक्स, करोला, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। हार्माफ्रोडाइट, क्योंकि यहाँ पर एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों सेम फ्लावर में प्रेजेंट है। एक्टिनोमॉर्फिक, क्योंकि फ्लावर को आप जब भी कट करोगे तो वो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा। हाइपोगाइनस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सुपीरियर ओवरी देखने को मिलेगी, क्योंकि सारे वर्ल्स ओवरी के नीचे से अराइज हो रहे होते हैं। टेट्रा और पेंटामेरस कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। If we talk about the calyx, then these are 5 sepals, rarely 4, usually gamosepalous condition. Gamosepalous condition means that the sepals are fused together. Sometimes you can see polysepalous condition in the case of Thevisia or Catharanthus. Estivation may show variation in different plants, like you will be able to see volvate estivation in the case of Catharanthus. You will be able to see quinquential estivation in the case of Thevisia and imbricate estivation in other members also. सो कैलेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 सेपल्स हैं, रेयरली आपको 4 सेपल्स देखने को मिलेंगे। गैमोसेपलस कंडीशन मोस्टली देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर सेपल्स फ्यूज्ड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। कुछ केसेस में आपको पॉलीसेपलस कंडीशन दिख सकती है, या जैसे कि थेविशिया और कैथरांथस के केस में आपको जो सेपल्स होंगे वो फ्री होंगे, इसलिए वहाँ पर पॉलीसेपलस कंडीशन होगी थेविशिया और कैथरांथस के केस में। एस्टिवेशन में आपको वेरिएशंस दिखाई देंगे, जैसे कि कैथरांथस के केस में आपको वोल्वेट एस्टिवेशन दिखाई देगा कैलिक्स में, थेविशिया के केस में आपको क्विंक्विंशियल एस्टिवेशन दिखाई देगा, और कुछ प्लांट्स के केस में आपको इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन भी दिखाई देगा कैलिक्स के केस में। If we talk about corolla, then there are 5 petals, rarely 4. Gamopetalous condition, it means that the petals are fused together. Funnel shaped corolla, which is also called as infundibuliform, twisted estivation or rarely volvate estivation, sometimes contain hairy outgrowths called as corona at the mouth of the corolla tube. So in the case of corolla, you will be able to see funnel shaped corolla. Estivation may be of twisted or volvate type, and the characteristic feature of the corolla that you will be able to see in some members, that there will be hairy outgrowths present at the base of corolla, which is called as the corona. We have seen such hairy outgrowth structures in our Thevisia peruviana video. If you have not seen it yet, you can see it from the playlist section. अगर हम कोरोला की बात करें तो यहाँ पर आपको 5 पेटल्स देखने को मिलेंगे, रेयरली 4। गैमोपेटलस कंडीशन है, यानी कि जो पेटल्स होते हैं वो फ्यूज्ड होंगे। फनल शेप्ड कोरोला आपको दिखाई देगा, जिसके लिए जो बॉटनिकल टर्म है वो है इन्फंडिबुलिफॉर्म कोरोला। एस्टिवेशन आपको ज़्यादातर केसेस में या तो ट्विस्टेड एस्टिवेशन दिखाई देगा या फिर वोल्वेट एस्टिवेशन दिखाई देगा। ज़्यादातर केसेस में आपको जो कोरोला है उसके बेस पे कुछ हेयरी आउटग्रोथ्स दिखाई देंगे, जिसे हम लोग कोरोना कहते हैं। और इन हेयरी आउटग्रोथ्स को हमने अपने थेविशिया पेरुवियाना वाले वीडियो में देखा भी था। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। Now coming to androecium. So there are 5 stamens. Epipetalous condition, it means that the filament of the stamens are connected with the petals. Alternate with the corolla lobes. Filaments are short, anthers are dithecous, introdes and they are polyandrous. The anthers are free from each other. सो एंड्रोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको 5 स्टेमन्स दिखेंगे। इपीपेटलस कंडीशन यहाँ पर देखने को मिलेगी, जो हम लोगों ने थेविशिया वाले वीडियो में देखा भी था कि किस तरीके से स्टेमन्स के फिलामेंट पेटल से कनेक्टेड थे। अल्टरनेट विद द कोरोला लोब्स, फिलामेंट शॉर्ट है, एंथर डाइथीकस है। इंट्रोड्स कंडीशन है, यानी कि जो डिहिसेंस होगा एंथर्स का वो फ्लावर के अंदर की तरफ होगा। पॉलीएंड्रस कंडीशन है, यानी कि जो स्टेमन्स हैं वो फ्री हैं। गाइनोशियम यूजुअली 2 कार्पल्स बिकॉज दे कम अंडर बाइकार्पेलेट, सो दे इंक्लूड अ बाइकार्पेलरी syncarpus, mostly syncarpus, superior ovary, sometimes inferior, and the placentation may be of parietal type or axial type or marginal placentation. One of the most important characteristics that you will notice within the member is that a nectariferous disc
is present at the base of gynoecium in several genera. Like in the case of Thewisia, we have seen that nectariferous disc in our video. In the case of Catharanthus and in the case of Rauwolfia, you will be able to see a kind of nectariferous disc at the base of gynoecium. अगर हम गाइनोशियम की बात करें तो यहाँ पर 2 कार्पल्स प्रेजेंट होते हैं, तभी एपोसाइनेसी बाइकार्पेलेट में आता है, क्योंकि इसमें 2 कार्पल्स आपको देखने को मिलेंगे. मोस्टली सिनकार्पस कंडीशन होती है, सुपीरियर ओवरी होती है, और कभी कभी आपको इंफीरियर ओवरी की कंडीशन भी कुछ प्लांट्स में देखने को मिल सकती है. प्लेसेंटेशन की अगर हम बात करें तो आपको वेरिएशन दिखाई देगा पैराइटल में, एक्साइल में और मार्जिनल में. इसके अलावा जो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका वो ये है कि यहाँ पर एक नेक्टेरिफेरस डिस्क प्रेजेंट होगी गाइनोशियम के बेस पे, जैसा कि हम लोगों ने थेविशिया वाले वीडियो में नेक्टेरिफेरस डिस्क देखी थी. इसके अलावा आपको कैथरांथस और राउल्फिया में भी ये कंडीशन देखने को मिलेगी. नाउ कमिंग टू द फ्रूट ऑफ family Apocynaceae, you will be able to see a drupe or a berry, and the floral formula which is your actinomorphic, hermaphrodite, calyx is 5, gamosapalous condition, corolla is 5, gamopetalous condition, androecium stamens are 5, and epipetalous condition. Gynoecium is bicarpellary, syncarpous एंड सुपीरियर ओवरी. फ्लोरल फार्मूला की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन है, हर्माफ्रोडाइट है. कैलेक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 5 सेपल्स प्रेजेंट होते हैं. गैमोसेपलस कंडीशन होती है क्योंकि यहाँ पर सेपल्स ज़्यादातर केसेस में आपको फ्यूज्ड दिखाई देंगे, कुछ केसेस में आपको पॉलीसेपलस कंडीशन भी दिखाई दे सकती है. कोरोला की अगर हम बात करें तो आपको यहाँ पर 5 पेटल्स दिखाई देंगे. गैमोपेटलस कंडीशन होगी यानी कि फ्यूज्ड पेटल्स होंगे. स्टेमन्स की अगर हम बात करें तो 5 स्टेमन्स होंगे. इपीपेटलस कंडीशन होगी, इसलिए ये एरो बनाया गया है. इपीपेटलस का मतलब है जो एंथर के जो फिलामेंट्स होते हैं वो फिलामेंट पेटल से कनेक्टेड होंगे. गाइनोशियम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाइकार्पेलरी कंडीशन है, सिनकार्पस है यानी कि फ्यूज्ड कार्पल्स है, और सुपीरियर ओवरी का ये साइन होता है. तो इस तरीके से फैमिली एपोसाइनेसी के मेंबर्स को हम इस जनरल फ्लोरल फार्मूला से सिंबलाइज कर सकते हैं. अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए. थैंक यू सो मच.